جو ہیں یہاں پہ رکھی ہیں میز پہ دو کتابیں ہیں اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اسے آپ دو ہی کتابیں ہیں یا دو کتابیں آئی ہیں؟ دو کتابیں ہیں مختلف موضوعات تو یہ دیکھیں کہ مجموعے ہیں. ایک کا نام ہے بدن دریدہ جو کتاب مشہور ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے فروخ پرویزات کا منظوم ترجمہ جو میں نے کیا اور وہ منظوم ہو گیا. وہ ایران کی بہت ہی بہترین شاعرہ ہیں اور اکثر نظمیں ان کے اسی بحر میں ہو گئی جو کہ بالکل ایک معجزہ تھا. تو آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. وہ یہاں پر ہیں اور اگر آپ سے $15 کی ہیں. اب میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر صدقہ ران صاحب سے کلام رحمت فرمائیں. سیتا کی کہانی کے بارے میں شاید آپ کو علم ہے کہ راون کی قید میں رہنے کے بعد جب وہ لوٹی تو کسی ایک شخص کے کہنے پر اس کی پاکیزگی پر شک کیا گیا اور وہ اپنے پتی کا گھر چھوڑ کر محل چھوڑ کر رشی کی کٹیا میں رہنے لگی. ایک مدت کے بعد جب وہ لوٹی, جب اسے بلوایا گیا واپس, تو یہ شک ختم نہیں ہوا کہ وہ پاکیزہ ہے. روایت ہے کہ سیتا زمین سے پیدا ہوئی تھی. اس کے والد راجا جنک کو یہ بشارت ہوئی تھی کہ اگر وہ زمین میں ہل چلائے تو ایک کمبھ گھڑا برآمد ہوگا اور اس میں ایک بچہ ہوگا. تو اساطیر کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ بنت زمین تھی. تو جب اس پر یہ الزام دوبارہ عائد کیا گیا تو اس نے اگنی پریکشا دی, یعنی اس نے کہا کہ میں آگ میں سے چل کر نکلوں گی اور اگر میں زندہ بچ گئی تو میں پاکیزہ ہوں. اور وہ زندہ بچ گئی, لیکن تب بھی اس پر یہ شک قائم رہا. تو اس نے اپنی دھرتی ماں سے فریاد کی کہ تو شک ہو جا تاکہ میں اس میں سما جاؤں. اور روایت ہے کہ زمین شک ہو گئی اور اس میں سما گئی. نظم کا عنوان ہے زندہ درگور بنت زمین. دونوں آکاش کے مرد فرزند تھے. آکاش آسمان کو کہتے ہیں زمین کی مناسبت سے. دونوں آکاش کے مرد فرزند تھے. رام بھی مرد تھا اور راون بھی آخر فقط مرد تھا. آسمانوں کی خواہش زمین کے لیے کچھ اچنبھا نہ تھی. دونوں آکاش کے مرد فرزند تھے. رام بھی مرد تھا اور راون بھی آخر فقط مرد تھا. آسمانوں کی خواہش زمین کے لیے کچھ اچنبھا نہ تھی. اور سیتا تھی بنت زمین, ایک عورت فقط پاؤں کی گرد تھی. گرد کے واسطے آسمان تک پہنچنے کی لمبی مسافت کٹھن کام تھا. اور سیتا تھی بنت زمین, ایک عورت فقط پاؤں کی گرد تھی. گرد کے واسطے آسمان تک پہنچنے کی لمبی مسافت کٹھن کام تھا. اور دھرتی کی بیٹی کی مکتی ازل سے زمین میں سما کر ہی ہوتی رہی ہے. کئی قرن گزرے مگر یہ شہادت کا لا اختتام اندھی صدیوں کا ورثہ ہی بنت زمین کا مقدر رہا ہے. کئی قرن گزرے مگر یہ شہادت کا لا اختتام اندھی صدیوں کا ورثہ ہی بنت زمین کا مقدر رہا ہے کہ ہر دور میں زندہ درگور ہونا ہی سیتا کی تقدیر کا ایک نوشتہ ہے, رام اور راون کا تحریر کردہ. کہ ہر دور میں زندہ درگور ہونا ہی سیتا کی تقدیر کا ایک نوشتہ ہے, رام اور راون کا تحریر کردہ. بہت سناتا ہوں. میں دراصل اپنے ریڈنگ کلاسز چھوڑایا, بہرحال مل جائے گا کہیں کچھ نہ کچھ. تاریخ کا
तारीख को पढ़ने का फलसफा क्या है, जरा ये शेर ये नज़्म देखिए, टूरिस्ट गाइड नज़्म का عنوان है, टूरिस्ट गाइड। मैं भी टूरिस्ट गाइड हूँ, फहमीदा ये नज़्म सुनिए। मैं भी टूरिस्ट गाइड हूँ, मैं आपको ऐ साहिबो ये गुंबदो मीनार। बीबी सामने से हटिए जरा। सॉरी, मैं और किसके मैं साथ भी गया? टूरिस्ट गाइड हूँ, मैं आपको ए साहिबो ये गुंबदो मीनार, ये ऊंची फसीलें, लाल कले, संगमरमर के झरोके, बेगमों के हाउस, खासो आम के दीवान, तख्तो ताज, कलगी जुब्बा दस्तार, बढ़ते लश्कर जर्रार, यानी मुल्क की तारीख की अजमत की शाहद खूबसूरत दिलरुबा मंजर दिखाऊंगा। हमारे मुल्क की तारीख भी तो बादशाहों, शाहजादों, जिले सुबहानी के भाइयों, बेटों पोतों की लड़ाइयों, नुसरतों पसपाइयों की रोशनाई से इबारत की गई है। हमारे मुल्क की तारीख भी तो बादशाहों, शाहजादों, जिले सुबहानी के भाइयों, बेटों पोतों की लड़ाइयों, नुसरतों पसपाइयों की रोशनाई से इबारत की गई है। कौन जाने किस महल के हश्त पहलू शीश गुंबद में जड़े, शीशों के टुकड़ों में चमकती आईना बंदी, शीशों के टुकड़ों में चमकती आईना बंदी में किस तन्नाज के नाजुक बदन के जाविये परखे गए। कौन जाने किस महल के हश्त पहलू शीश गुंबद में जड़े, शीशों के टुकड़ों में चमकती आईना बंदी में किस तन्नाज के नाजुक बदन के जाविये परखे गए। कौन जाने किस सुबक रो बरपा गज्जाल की पाजेब के घुंघरू, कलाई में बंधे गजरे, हवसकारी में किस जिले इलाही की जहां बानी तले रौंदे गए। कौन जाने अबरुए शाह के किसी हल्के इशारे पर नयामों से जो तलवारें निकल कर तन गईं, उनसे कहां किस सेंची दालान घर में कितने मासूमों के सर काटे गए। शाहजादों, सूबेदारों, बागियों के अज़्म, सरकर्दा अलम, कलों की दीवारों पे तोपों की दनादन, बरसरे पैकार भाई बागी, बरसरे पैकार बागी भाई बेटे, साजिशें महलों में, कत्ले आम शहरों में, वली अहदों को तख्तो ताज दिलवाते हुए जहाँ से गए माओं के बेटे, भूखे नंगे लोग, तावानों खिराजों में बंधी बेहाल मर्दों औरतों की सैकड़ों नस्लें। आपके पेशे नज़र हैं साहिबो ये गुंबदो मीनार, ये ऊंची फसीलें, लाल किले, बेगमों के हाउस, तख्तो ताज, खासो आम के दीवान, सारे खूबसूरत दिलरुबा मंजर हमारे मुल्क की तारीख की अजमत के शाहद। एक और कोहे निदा नई नज़्म है। मुलायम नरम रेशम सा फवारों की तरह भीगा हुआ लहजा, कभी मैं ये समझता था कि अपनी बात कहने का यही बेहतर तरीका है, मगर ये लोग सुनने के लिए तैयार ही कब थे। मुलायम नरम रेशम सा फवारों की तरह भीगा हुआ लहजा, कभी मैं ये समझता था कि अपनी बात कहने का यही बेहतर तरीका है, मगर ये लोग सुनने के लिए तैयार ही कब थे। ज़माना वो भी आया, मैंने अपने पाँव मजबूती से धरती पर जमाकर और लहजे को ज़रा सा सख्त करके ये कहा, लोगो तुम्हारे ही भले की बात है, सुन लो। मगर ये लोग जैसे अब भी बहरे थे, बहुत बरहम, बहुत नाराज। मैंने पांव पटखे, मुट्ठियां भींची, बुलंद आवाज में बोला, अरे बहरे हो, सुनते क्यों नहीं हो, बात सच्ची है। मगर कब्रों के कदमों से कोई कैसे मुखातिब। बहुत बरहम, बहुत नाराज। मैंने पांव पटखे, मुट्ठियां भींची,
बुलंद आवाज में बोला, अरे बहरे हो, सुनते क्यों नहीं हो, बात सच्ची है, मगर खबरों के कतबों से कोई कैसे मुखातिब हो। जमाना ये भी आया है कि मैं खामोश हूँ, कहने को मेरे पास अब कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे चारों तरफ एक जमघटा है, दम बखुद से गोश बर आवाज मेरे बोलने के मुंतजर है मर्दुज़म साले। आज की हमारी ये महफिल उर्दू अदबी फोरम के तहत मुनक़िद की गई है और हमारे मजलिस के सदर जनाब डॉक्टर सिकंदर मेहदी साहब तशरीफ़ फरमा है। आप कुछ इज़हार ख्याल फरमाएंगे इससे पहले कि शब महफिल मेहमान खुसूसी मोहतरमा दानिश रियाज साहब के सामने रखी जाए। मेरा ख्याल है आप सुनाएं शायरी का प्रोग्राम। अब शब महफिल शब महफिल आपके सामने है और हम ये चाहते हैं कि हम आपको जितना सुन सकें उतना सुनें। अक्सर मैंने अपने बारे में लिखे मज़ामीन पढ़े और लोगों की राय भी मुझ तक पहुँचती बढ़ाती जो थी, तो अक्सर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि हमें आदत है कि हम इंसान को बहुत खानों में बांट कर देखें और वो एक पूरा इंसान कैसा है, बल्कि यूँ कहें कि वो पूरी इंसान कैसी है, वो देखने में हमें दुश्वारी होती है, ख़ुसूसन अगर वो औरत भी। मिसाल के तौर पर KCR की फहमीदा की शायरी जो है वो कुछ मर्दों के खिलाफ है। ऐसा तो कैसे हो सकता था, क्यों कर हो सकता था? इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार होते हैं। इब्तदाई शायरी तो इश्क व मोहब्बत की ही होती है, इश्क के बगैर तो शायरी हो ही नहीं सकती है। शायरी की इब्तिदा जिनसे मुखालिफ से कशिश के बायस ही पैदा होती है, इसके बगैर कैसे क्यों कर हो सकती थी? लेकिन वजूद सिर्फ वही तो नहीं होता, और कुछ भी होता है। मैं आपको अपनी नज़में एक छोटा सा डिटूर जैसे कहना चाहिए कि आप वो करा थे। इब्तिदा में जैसे हमने लिखी नज़में जो कि मोहब्बत की नज़में हैं, पहले अपने मजमूए से आपको सुना रही हूँ, लेकिन इसमें कोशिश की है कि इसको एक फनकाराना तरीके से पेश की जाए। ये मेरी इसमें से है, पत्थर की ज़बान से एक नज़म है। जब नींद भरी हो आँखों में, ये है कि जब नींद भरी हो आँखों में, जब रात गए बेला महके और चार तरफ हो सन्नाटा, चुपचाप गुजरते हों लम्हे, ऐसे में हवा का झोंका भी पत्तों में जो आहट करता है, मुझको तो गुमा ये होता है जैसे वो हंसा आहिस्ता से। आधी सोई आधी जागी मैं अपना दर्द दबाती हूँ और उस आंसू को छुपाती हूँ जिसको मिट्टी में मिलना है। ऐसे में हवा का झोंका भी पत्तों में जो आहट करता है, मुझको तो गुमा ये होता है जैसे वो हंसा आहिस्ता से। आंखें मूंदूं आंखें खोलूं, आंखें मूंदूं वो पास आए और मुझसे कहे तुम मुझको अच्छी लगती हो। आधी सोई आधी जागी फिर मैं चुपके से हंसती हूँ, धीरे धीरे सो जाती हूँ। आंखों में किस्म की नज़में जो हैं हमारी आपको ये पहली किताब में नज़र आएंगी। उसके बाद फिर दूसरा मजमूआ बदन दरीदा है। तो ये जो है नज़में ये ज़िंदगी के बिल्कुल दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात के बारे में आई हैं और इसमें एक औरत होने का एहसास और इसके अंदर प्रेगनेंसी के ऊपर लिखी हुई नज़में और बच्चे की पैदाइश के ऊपर लिखी हुई नज़में, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल हो गई। लेकिन इसमें औरत के बारे में मेरा मतलब वो उसकी बहुत मज़लूमियत का तसव्वुर जो है वो कभी इतना ज़्यादा था नहीं। आप मेरी नज़मों में जो मैं भी आपको सामने पेश करूँगी, औरत को मर्द औरत के ताल्लुक में एक एक्टिव पार्टनर की हैसियत से देखते हैं, एक पैसिव पार्टनर की हैसियत से, एक बराबर के पार्टनर की, और ख़ुसूसन जो प्लेजर के बारे में जो कि एक नेमत खुदाबंदी है मेरे नज़र में। तो इसके बारे में प्लेजर के बारे में लिखी हुई नज़में हैं। और औरत के बारे में जो है उसका ये है कि
मसलन एक औरत की हंसी, पथरीले कोहसार के गाते चश्मों में गूंज रही है एक औरत की नर्म हंसी। दौलत, ताकत और शोहरत सब कुछ भी नहीं, उसके बदन में छुपी है उसकी आज़ादी। दुनिया के मोहब्बत के नए बुत कुछ कर ले, सुन नहीं सकते उसकी मसरत की सिसकी। इस बाजार में गोहर माल बिकाऊ है, कोई खरीद के लाए जरा तस्की उसकी। और एक सरशारी जिससे वो ही वाकिफ है, चाहे भी तो उसको बेच नहीं सकते। वादी की आवारा हवाओं आ जाओ, आओ और उसके चेहरे पर बोसे दो, अपने लंबे लंबे बाल उड़ाती जाए, हवा की बेटी साथ हवा के गाती है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपको यहाँ पे ये भी लगेगा कि मर्द के हक के मगर पूरी सोसाइटी में जो औरतों को एक ख़ास मुकाम दिया गया है, तो उसको एक हकारत से ठुकराने का आपको इसके अंदर नज़र आएगा। मसलन इसमें है मैं वो एक ज़नी नापाक, तमाम ज़्यादातर मज़हब में औरतों को नापाक कहा जाता है। ये औरतें क्यों किस लिए नापाक, चाहे वो हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी, मगर औरतों को बहरहाल वो एलिवेटेड दर्जा नहीं दिया जाता, जैसे कि मतलब रिलीजियस तफसीरात उनसे अक्सर नहीं कराई। तो इसके ऊपर एक गुस्से भरी नज़में मैंने बेशक लिखी हैं, जैसे वो एक ज़नी नापाक, वो एक ज़नी नापाक है बहते लहू की कैद में, गर्दिश में माहो साल की, दहकी हवस की आग में, अपनी तलब की चाह में, ज़ाइदा इब्लीस थी चल दी उसी की राह में। कहते हैं ना कि भगवान ने तो मतलब खुदा ने मर्द को और शैतान ने औरत, ज़ाइदा इब्लीस थी चल दी उसी की राह में, उस मंजिले मोहम को जिसका निशान पैदा नहीं, संगम वो नूर नार का जिसका पता मिलता नहीं, उबले लहू के जोश से पिस्तान उसके फट चुके, हर नो के खारे राह से बंदे लहम सब कट चुके, उसके बदन की शर्म पर तकदीस का साया नहीं, लेकिन खुदाए बहरुबर ऐसा कभी देखा कहीं, फरमान तेरे सब रवा, हाँ उस जने नापाक के लब पर नहीं कोई दुआ, सर में कोई सजदा नहीं। तो यही फिर सिलसिला आपको आगे बढ़ता नजर आएगा। साथ साथ ये कि औरत होती है, उसको अपने औरत होने का एहसास है, और साथ साथ अपनी गर्दोपेश का, जिसमें वो अपने आप को देखती है, मुख्तलिफ तबकात को देखती है, अपने समाज को, सियासत को। तो इन सब चीज़ों पर भी एक इंसान की हैसियत से, एक औरत की हैसियत से स्टैंड्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के आदमी के, जो कि आपको मेरी शायरी में नज़र आएंगे। मसलन ये कि पाकिस्तान में मैं रहती हूँ तो माइनॉरिटीज़ के राइट्स पर लिखे हैं हमने, और एक मुद्दत तक हम उस स्ट्रगल में शामिल रहे। तो जैसे कि मेरी एक नज़्म है, आ मेरे अंदर आ पवित्र मेहरान के पानी, ठंडे मीठे मटियाले पानी, मटियाले जीवन रंग जल। अब देखिए आपको इस नज़्म में दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो ये कि हमारा एक स्टैंड बना कि ये ज़बान के साथ क्या किया गया है, इसमें से हिंदी अल्फाज को क्यों गायब कर दिया गया, इमेजेस को क्यों, जो कि इंडियन इमेजेस हैं उनको पाकिस्तान में क्यों निकाल दिया गया। और दूसरी तरफ ये भी कि जो जिस धरती पर हम आज जाकर बसे हैं, तो वहाँ पर हम अपनी गहरी जड़ें लें और उससे अपने आप को कबूल करवाएं कि भाई वो हमको मान ले और वो हमको अपना बना ले। तो वो इस तरह से, इसका नाम जाप है। ये आ मेरे अंदर आ पवित्र मेहरान के पानी, ठंडे मीठे मटियाले पानी, मटियाले जीवन रंग जल, धो दे सारा क्रोध कपट, शहरों की दिशाओं का सब छल, यूं सींच मुझे कर दे मेरी मिट्टी जल थल। तेरे तल की काली चिकनी मिट्टी से माथे पर तिलक लगाऊं, हाथ जोड़ दंडौत करूं, ओ मन के भेद से गहरे, हौले हौले सांस खींचते, ओम समान अमर, ओ महान सागर, मैं उतरी तेरे ठंडे जल में कमर कमर, तेरे ठंडे मीठे मेहरबान पानी से मुँह धो लूं और धो लूं आंसू, खारे आंसू तेरे मीठे पानी से धो लूं। ओ महान मटियाले सागर, आ सुन मेरी कथा, मैं बड़ी अभागन, भाग मेरा बेदर्द हाथ में रहा सदा, टूटा मेरा मिट्टी से नाता,
कैसे टूटा एक आंधी बड़ी भयानक लाल चुड़ैल मुझे ले उड़ी, उठाकर पटका उसने कहाँ से कहाँ। तेरे चरणों में शीश झुकाती एक अकेली जान, मेरे साथ मेरा कोई मीत नहीं, कोई रंग रूप कोई प्रीत नहीं, मेरी अनगढ़ फीकी मटी मुरझाती बोली में कोई संगीत नहीं, मेरी पीढ़ियों के बीते युग मेरे साथ नहीं। बस एक निर्दयी धर्म है जिसका भरम नहीं, वो धर्म जो कहता है मिट्टी मेरी बैरन है, जो मुझे सिखाता है सागर मेरा दुश्मन है। हाँ दूर कहीं आकाश की ऊंचाई से परे रहता है खुदा, इतना रूखा मिट्टी से जोड़ नहीं जिसका। सब नाते प्रीत और बैर के उसके कारण मैं कैसे जोड़ूं, मैं मिट्टी मेरा जन्म मिट्टी, मैं मिट्टी को कैसे छूं। ओ महान सागर जीवन रस दे, अपने तल में जल पौधा बनकर जड़ले दे सदा जिए। ओ महान सागर सिंधु तू सदा जिए, और जिए तेरे पानी में फिसलती मछलियाँ, शांत सुखी यूं ही तेरे पानी में नाव खेते तेरे बालक सदा जिए। ओ धरती ओ पालनहार हमारे, धरती के रखवाले, तेरी मिट्टी नर्म रेतीली मेहरबान सिंध की धरती सदा जी। तो फिर साथ साथ में जो है कि वो आदमी जो है वो जिंदगी में अपनी सियासी जद्दोजहद में शामिल होता है, और खुसूसन जो है वो देखता है मतलब औरतों की जो सिचुएशन है उसके बारे में, उस तरफ भी उसकी नज़र जाती है, लेकिन उसकी नज़र एक जगह जाके अटक नहीं जाती है, वो चारों तरफ अपनी नज़र रखता है। लेकिन इसमें जैसे कि और लड़कियों के लिए ये चीज़ की बड़ी मजलूम है, इस बारे में मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि मजलूम ही रहना उनका मुकद्दर है, और क्यों है मजलूम, वो चाहे तो भटक गई। तो मैंने एक नज़म लिखी थी, एक लड़की ही की बल्कि एक शायरा ने लिखी थी कि मैं तो संग दिल रिवाजों के जिंदा में बंद एक लड़की हूँ, और कोई आई शहजादा तुम बखत मुझे छुड़ा तुम्हें जो करना है खुद कर। तो ये एक नज़म है, और ये बाद में काफ़ी लोगों ने पसंद किया, इसके पोस्टर बाद में बनाए। जब मैं ये नज़म लिख रही थी तो उस वक्त कोई ना विमेंस मूवमेंट थी और ना उसका कोई आसपास कोई साया, अपने आप से बैठे लिख रहे थे। बाद में विमेंस मूवमेंट पाकिस्तान तक पहुंची और बड़ी तो तेज़ चली थी वहाँ पर, तो फिर उन्होंने उससे हमारे दिल को बड़ा सहारा हुआ, उन्होंने इसके पोस्टर्स वगैरह बनाए। संग दिल रिवाजों की ये इमारतें कोहना, अपने आप पर नादिम अपने बोझ से लर्जा, जिसका जर्रा जर्रा है खुद शिकस्तगी सामा, सब हमीदा दीवारें सब झुकी हुई कड़ियाँ, संग दिल रिवाजों की खस्ताहाल जिंदा में एक सदाए मस्ताना एक रक्स रिंदाना, ये इमारतें कोहना टूट भी तो सकती है, ये असीर शहजादी छूट भी तो सकती है, ये असीर शहजादी जब्र खौफ की दुख्तर, वाहिमों की परवरदा, मसलिहत से हम बिस्तर, ज़ोफ़ो यास की मादर, जब निजात पाएगी सांस लेगी दर्राना, महवे रक़्स रिंदाना अपनी ज़ात पाएगी। तू है वो ज़नी जिंदा जिसका जिस्म शोला है, जिसकी रूह आहन है, जिसका नुत्क़ गोया है, बाजुओं में कुव्वत है उंगलियों में सन्नाई, वलवलों में बेबाकी लज्जतों की शैदाई, इश्क आशना औरत वस्ल आशना औरत, मादर खुदाबंदी आदमी की महबूबा। दिस इज माय कॉन्सेप्ट ऑफ वुमन, जिसके अंदर वो एक माँ भी है और वस्ल आशना है और इश्क आशना है और आदमी की महबूबा है। तो ये मर्दों के खिलाफ मेरी शायरी नहीं है। आपको ये शक क्यों हुआ, कैसे पहचानी जाएगी? तो आप ही ने जिक्र किया था मर्दों के नहीं, मगर पूरे समाज में वो एक इस्तेसाली निज़ाम होता है, तो उसको देखकर लगता है ना। इस किताब का आखिरी पेज वो खतरनाक लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से चल रहा है जी। तो बस अब आप आने वाले हैं, तालिबान पे नज़म आखिरी है आप। मेरी शायरी पर बाद लोगों ने अजीब अजीब से, मतलब जब मैंने ये लिखा तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि लोग इसको किस तरह से रिएक्ट करेंगे।
मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स में हम बहुत इन्वॉल्व हो गए थे। तो इन सब चीज़ों ने मेरे दिल में इतनी नफरत पैदा की। मैंने पूरी एक 7 चैप्टर्स की एक किताब थी, क्या तुम पूरा जानोगे, दीवार से नीचे बैलेंस ये 7 चैप्टर्स थे पूरे और ये पहली और आखिरी, उसके बाद मैंने नस्री नज़्म नहीं लिखी, लेकिन ये मैंने नस्री नज़्म ही लिखी थी जो कि एक्चुअली उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इस शायरी को इतना गलत समझा। और फिर हमने क्या किया और हमें कैसे निजात मिली इस पूरे अजीब माहौल से, क्योंकि किसी औरत को पेश आ सकते हैं, वो उसको पूरा इंसान होने से, एक सिटीज़न होने से, सियासी ख्यालात रखने से, सियासी स्टैंड रखने से रोकना चाहते हैं। वो यूँ था। मैंने शेर लिखा अपने आंसुओं से, बिलक बिलक कर लिखा, खून की बूंदों से नुक्ते डाले, अपने गोश्त को चीर फाड़ कर रेशे निकाले और इन्हें काफिये में बांधा। बेबसी के नाखूनों से मैंने अपनी हथेली पर शेर गोदा और तुम्हें दिखाया। तुम गलीज हंसी हंस पड़े, आहा हा नंगी शायरी तुमने कहा, और मेरे कलाम से फुहाशी करने लगे। मैं सर पटकती रह गई उन गीले दावतनामों पर जो बेहयाई से मुझे बुला रहे थे, तमव्वुल की चर्बी पर फिसलने के लिए और तुम्हारी मुरगन महफिलों में जा गिरने के लिए। मायूसी की दलदल में शायद मैं डूब ही जाती, मुझे तो कीचड़ ने थामा, मैं कीचड़ हूँ, उसने प्यार से कहा, बदबूदार गलियों में रहती हूँ, मैं तेरे देश की धरती पर गाँव बिखरी हूँ, मैं कीचड़ हूँ, कुर्रे अर्ज पर धरती का सबसे पहला रूप। मैं सब्र करके पत्थर बनी हूँ और प्यार करके वादी, मेहरबानी के सब्जे से सीना ढांप कर मैंने दुधीले गंदम के खजाने लुटा दिए, हीरे लाल जवाहर बन गए और रगों में सोना चांदी पिघलने लगा। एक आकर के पहाड़ कौन बना, इज्तिमाई अज़्म की मानिंद सीना चौड़ा किए, सर बुलंद अटल धरती पर मैं ही खड़ी हूँ। तुमने अपने दौर के बर्फानी ज़मानों की सर्दी सही, पर ज़रा मुझे अपने ओक में भरो, मुझे महसूस करो, मैं कीचड़ हूँ, फलक बोझ पहाड़ों का सैयार, मैं दिल ही दिल में लावा बनाती हूँ। मेरी आज की कमज़ोर बेबज़ात फिसलन क़यामत खेज़ ज़लज़लों का इम्कान है। कीचड़ में डूबकर मैं फिर सांस लेने लगी। मैं जब शिकस्त खुर्दा थी, अच्छा तो हम सियासत में बहुत इन्वॉल्व थे, हत्ता कि एक रिसाले की मैं एडिटर थी, तो उन्होंने मेरे पर सेडिशन का 124 अलिफ बे में मुकदमा कर दिया, जिसकी सज़ा बिल्कुल फांसी होती है, और मैं बेल के ऊपर रिहा थी ज़रूरत के दौर में। तो ये उसके बारे में है। कीचड़ में डूबकर मैं फिर सांस लेने लगी। मैं जब शिकस्त खुर्दा थी, हालात के पंजे में बेबसी से अश्कबार, तब तुम मेरी दाद देते न थकते थे, लेकिन अब जब मैंने झटक दिया है नाताकती को अपने बाजुओं से और मोड़ दिया है हालात का पंजा अपनी निहत्ती कलाई के बल पर, जब मेरी जन्म जन्म की हसरत ने अपनी धरती की महरूमियों की जानिब देखा और रोती हुई यूं उनके गले जा लगी जैसे बेटी बिछड़ी माँ से लिपट जाए, तब तुम इतने खौफजदा हो गए हो, तुमने मेरे पीछे पुलिस लगा दी है, समन और वारंट जारी करते हो, अपने सारे खौफ की रस्सियों को बटकर मुकदमों की फांसी मेरे सर पर झुलाने लगे हो। बगावत का मुकदमा, बात तो हंसी की है, लेकिन ये तो एक गूंज है मेरे बचपन की। किसी ने कहा था तुम बागी हो, और आखिरकार मेरी नाफरमानी को सीने से लगा लिया था। वो मेरी माँ थी, तारीख भी मेरी माँ है, उसने मुझे ज़ात के अंधेरे गार में आ लिया। लिखो, उसने कहा। मैं जाहिल हूँ, नहीं लिख सकती, मैंने खौफ से कांपते हुए कहा। तब उसने मेरे सर्द बदन को अपने आगोश में भींचा और फिर कहा, लिखो, खलकत का नाम लेकर जो ज़मीनों पर मुहित है और ज़मानों तक रवां है, जो अजीम है और कबीर है, जो इस पूरी फैली धरती की मालिक है। और मेरा नुत्क़ रवां हो गया। मैं गवाही देती हूँ अपने मजलूम लोगों की दलेरी की, मैं गवाही देती हूँ उनकी फतेह मुबीन की, मैं गवाही देती हूँ। क्या तुम मेरे गले में जयमाला डालना चाहते हो?